ہسٹوریکل ڈائریز کے تمام معزز ناظرین، میں ہوں رضوان ملک اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باوفا اور جانثار ساتھیوں کی اہمیت واقعہ کربلا میں روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جنہوں نے ہر قدم پر امام کا ساتھ دیا اور امام مظلوم کی شہادت کو تاریخ میں امر بنا دیا۔ انہی باوفا ساتھیوں میں ایک نام جناب مسلم بن عقیل کا ہے، جو کہ امام علیہ السلام کی سفیر اور حسینیت کے ترجمان تھے۔ جب بھی مارکہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ جناب مسلم بن عقیل کا تذکرہ نہ کیا جائے، کیونکہ واقعہ کربلا کی ابتدا ہی سفیر حسین مسلم بن عقیل کی شہادت سے ہوئی۔ حضرت مسلم بن عقیل امام علی علیہ السلام کے بھائی عقیل بن ابی طالب کے بیٹے تھے، یعنی مسلم بن عقیل امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ مسلم بن عقیل عہد جوانی سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ آپ صورت اور سیرت رفتار و کردار میں پیغمبر اسلام کی تصویر تھے، اور آپ حضرت عقیل کی تمام اولادوں میں سب سے زیادہ بہادر اور قوی تھے۔ جناب مسلم نے امام علی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ سے نکاح کیا تھا۔ اس طرح آپ حضرت علی کے داماد تھے اور جناب حضرت حسن و حسین کے بہنوئی تھے۔ کربلا سے پہلے حضرت مسلم کی زندگی کے اہم واقعات میں ان کا 21 ہجری میں افریقہ کے اسلامی جنگوں میں شرکت کرنا ہے، جو آپ نے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور حضرت جعفر کے ہمراہ لڑی تھی۔ اس جنگ کا نام جنگ بہنسا تھا۔ اس کے بعد جناب مسلم جنگ صفین میں امام علی کے لشکر کے ایک حصے کے علمبردار تھے اور صفین کی لڑائی میں جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جناب مسلم اپنے بھائی حسین ابن علی کے ساتھ مدینہ آ گئے اور یہیں مقیم ہو گئے تھے۔ دراصل مارکہ کربلا کا آغاز یزید کے اعلان جانشینی سے ہی ہو گیا تھا۔ امیر معاویہ نے اپنی وفات کے بعد یزید کو خلافت کے لیے منتخب کر لیا، لہٰذا یزید نے اہل کوفہ کی بڑی بڑی شخصیات کو مجبور کیا کہ وہ اس کی بیعت کریں اور اس کی جابرانہ حکومت کو تسلیم کریں۔ لہٰذا جب کوفہ والوں کو خبر ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو 60 ہجری میں کوفہ میں حضرت سلیمان بن سرد کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اس وقت امام حسین مکہ کی جانب ہجرت فرما چکے تھے، لہٰذا اس جلسے میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب مل کر امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دیں گے۔ لہٰذا پہلا خط تحریر کیا گیا، جس میں سلیمان بن سرد، مصیب بن نجبہ، رفع بن شداد، حبیب بن مظاہر جیسے صحابہ اور تابعین نے دستخط کیے، اور رمضان 60 ہجری سے امام حسین علیہ السلام کو کوفے سے خطوط پر خطوط ملنے شروع ہو گئے۔ ان خطوط میں کوفہ والوں نے لکھا کہ آپ فرزند رسول ہیں اور اس عیاش بنو امیہ کی حکومت کے خلاف قیام کرنا آپ پر فرض ہے۔ آپ ہمارے امام ہیں، لہٰذا اگر آپ نے یزید کے خلاف ہمارا ساتھ نہ دیا تو روز قیامت ہم آپ سے سوال کریں گے۔ کوفیوں کے خطوط کی کثرت دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر کوفہ بھیجا۔ حسین ابن علی نے مسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے اس سفر کو خفیہ رکھیں، لوگوں سے ملیں، اور اگر کوفہ کے لوگ امام کا ساتھ دینے پر راضی ہوں تو وہ واپس آ کر انہیں بتائیں۔ ایک لمبے اور سخت سفر کے بعد مسلم جب کوفہ پہنچے تو وہاں مختار ثقفی نے اپنے گھر میں ان کو ٹھہرایا۔ جب شیعان علی کو مسلم کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ مختار کے گھر آنا شروع ہوئے۔ حضرت مسلم نے دیکھا کہ کوفہ کے لوگوں میں یزید کے خلاف ایک عوامی لہر اور انقلاب برپا ہے۔ جناب مسلم نے کوفہ والوں کے سامنے ان خطوط کو بلند آواز سے پڑھا، جو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے تھے۔ لہٰذا اہل کوفہ نے اس پر لبیک کہا اور جناب مسلم سے عرض کیا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی خاطر جان و مال سے حاضر ہیں اور اس ظالم حکومت کے خاتمے کے لیے امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ لہٰذا لوگوں نے مولا حسین کے نام سے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کیا اور ایک دن میں تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ لہٰذا حضرت مسلم نے امام حسین کو خط روانہ کیا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں اور یہاں کے حالات آپ کے حق میں سازگار ہیں اور ایک عظیم لشکر آپ کا منتظر ہے، لیکن
जैसे ही ये खबर यजीद को पहुंची कि कोफा के लोग बगावत पर आमादा हैं और अहले कोफा मुस्लिम के हाथ पर बैत कर चुके हैं, तो उसने बसरा के एक जालिम गवर्नर जिसका नाम उबैदुल्लाह इब्ने ज़याद था उसे कोफा रवाना किया और उसे हुक्म दिया कि अहले कोफा के बगावत को सख्ती से कुचल दिया जाए और मुस्लिम बिन अकील के सर को काटकर शाम भेजा जाए। चुनाचे फौरन इब्ने ज़याद को कोफा पहुंचाया और वहां की गवर्नरी संभाली गई। इस वक्त जनाब मुस्लिम मुख्तार सकफी के घर से सहाबी रसूल हानी बिन उरवा के घर मुंतकिल हो गए थे। इब्ने ज़याद ने कोफा में ये ऐलान कर दिया कि जहां कहीं भी मुस्लिम बिन अकील मिले इन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि वो अमीरुल मोमिनीन और खलीफा वक्त का दुश्मन है। इब्ने ज़याद ने निहायत ही चालाकी से इस बगावत को कुचला। सबसे पहले इसने उन लोगों को सोने के सिक्के का लालच दिया जिन्होंने जनाब मुस्लिम की बैत की थी। लिहाजा कोफा के गद्दार और मुनाफिक सिर्फ लोग दरबार इब्ने ज़याद में हाजिर हुए और सोने की अशरफी लेते हुए मुस्लिम की बैत से इनकार कर दिया। इसके बाद इब्ने ज़याद ने कोफा में ये अफवाह फैला दी कि शाम से एक अजीम लश्कर आ रहा है। अगर कोफा वालों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की हमायत की तो वो लश्कर भूखे भेड़ियों की तरह कोफा वालों को नोच कर चीर फाड़ डालेंगे। लिहाजा कमजोर और बुज़दिल लोगों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की बैत को ठुकरा दिया और अपने अपने घरों में जा छुपे। अब सिर्फ गिनती के चंद लोग रह गए थे जो जनाब मुस्लिम के साथ थे और जिन्हें मौला हुसैन के लिए शहादत भी कबूल थी। लिहाजा इब्ने ज़याद ने कूफे की हर गली और हर मोहल्ले में अपने सिपाही फैला दिए और इन लोगों को चुन चुन कर मारने का हुक्म सादिर किया। इस वक्त हजरत मुस्लिम हानी के घर में मौजूद थे। कुछ गद्दारों ने इब्ने ज़याद को खबर दे दी कि मुस्लिम हानी के घर पर छुपे हुए हैं। हानी कूफा के एक बुजुर्ग थे और उनका कबीला भी उनके साथ था। इसके बावजूद इब्ने ज़याद के हुक्म से सिपाहियों ने हानी के घर का घेराव कर लिया और हानी को गिरफ्तार कर लिया गया। हानी की गिरफ्तारी के बाद अहले कूफा ने जनाब मुस्लिम का साथ छोड़ दिया और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये सफ़ीर अजनबी शहर में बेयारो मददगार रह गया। अब मुस्लिम के साथ सिर्फ 30 लोग रह गए थे जो कूफा की गलियों में सिपाहियों से छुपते फिर रहे थे। शाम होते ही सिर्फ 20 लोग रह गए और नमाज मगरिब अदा करने के बाद सिर्फ 10 अफराद बाकी रह गए। नमाज के बाद जब हजरत मुस्लिम बिन अकील मोहल्ला कंदा के करीब पहुंचे और पलटकर पीछे देखा तो खुद को तन्हा पाया। अब आपके हमरा कोई रास्ता बताने वाला भी ना था और इब्ने ज़याद के खौफ से कूफा की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। हर मकान का दरवाज़ा बंद था। हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा की गलियों में एक बेकस और बेचारा परदेसी की तरह चक्कर काट रहे थे। हजरत मुस्लिम की निगाह एक औरत पर पड़ी जो अपने दरवाजे पर खड़ी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। चूंकि मुस्लिम पर प्यास का शदीद गलबा था और दूसरी तरफ कोफियों के गद्दारी के एहसास ने इन्हें काफी मुतासिर कर दिया। लिहाजा आपने इस औरत के पास जाकर इन्हें सलाम किया और कहा कि मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो। इस औरत का नाम तवा था। तवा अंदर से इनके लिए पानी लाई। हजरत मुस्लिम ने पानी पिया। इसके बाद तवा ने हजरत मुस्लिम से कहा कि तुम अब अपने घर क्यों नहीं चले जाते। हजरत मुस्लिम खामोश रहे। इसने 2-3 मरतबा यही सवाल किया तो हजरत मुस्लिम ने जवाब दिया कि ए कनीज, मेरा इस शहर में कोई घर नहीं है। क्या तुम अपने घर में मुझे पनाह देकर सवाब हासिल करोगी? मुमकिन है मैं अपनी जिंदगी में इसका कुछ बदला दे सकूं। तवा ने पूछा कि आप कौन हैं? आपने जवाब दिया कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूं। कूफा वालों ने मेरे साथ गद्दारी की है। तवा हैरान हुई और कहा कि आइए, मेरा घर हाजिर है। आप घर में दाखिल हुए तो उसने एक अलग कमरे में फर्श लगाया, खाना लाई, मगर आपने खाना तनावल नहीं फरमाया। इसी असना में तवा का लड़का बिलाल आ गया। उसने अपनी माँ को जब उस कमरे में बार बार आते जाते देखा तो अपनी माँ से इसकी वजह दरियाफ्त की। लड़के की जिद ने तवा को ये राज बताने पर मजबूर कर दिया। पहले इसने लड़के से कहा कि तुम कसम खाओ कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। इसने कसम खाई तो तवा ने कहा कि आज हमारे घर में मुस्लिम बिन अकील मेहमान हैं। वो ये बात सुनकर खामोशी से सो गया, लेकिन सुबह होने का बेचैनी से इंतजार करने लगा। सुबह होते ही बिलाल इब्ने ज़याद के सिपाहियों के पास गया और इन्हें बताया कि मुस्लिम हमारे घर में मौजूद है।
लिहाजा सिपाही एक लश्कर लेकर तवा के घर के करीब पहुंचे। जनाब मुस्लिम ने हथियारों की झनकार और घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो जरा पहनकर घर से बाहर निकले। आपने देखा कि 170 सिपाही आपको गिरफ्तार करने के लिए बाहर खड़े हैं। आपने अकेले यजीदी फौज से 2-2 हाथ किए और एक एक करते हुए तमाम सिपाही जनाब मुस्लिम के आगे ढेर होते चले गए। बेशुमार सिपाहियों को जनाब मुस्लिम ने वासिले जहन्नुम किया। जब लश्कर के कमांडर इब्ने अशिस ने इब्ने ज़याद को खबर भिजवाई कि सिपाही कम पड़ गए हैं और मजीद लोग दरकार है, तो इब्ने ज़याद हैरान रह गया कि एक आदमी को पकड़ने के लिए इतने सारे सिपाही भी नाकाफी कैसे हो गए। इस पर एक शख्स ने इब्ने ज़याद से कहा कि वो कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि बनु हाशिम का चश्मो चिराग है। इतनी आसानी से इस पर काबू पाना नामुमकिन है। आप जख्मों से चूर थे, इसके बावजूद सिपाहियों के हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं और वो समझ गए कि इस हाशमी जवान से मुकाबला करने के लिए शेर का जिगर चाहिए। लिहाजा इब्ने अशिस ने जनाब मुस्लिम को अमान देने का वादा किया। इस पर हजरत मुस्लिम ने अमान को कबूल करते हुए हथियार डाल दी। इब्ने ज़याद के सामने पेश किया गया तो उसने मुनाफिकत दिखाई और इन्हें अमान देने से इनकार कर दिया और उस वक़्त जनाब मुस्लिम की आंखों से आंसुओं की लड़ी गिरने लगी। इसलिए नहीं कि अब शहादत का वक़्त करीब था, बल्कि उन्होंने इस बात का अफसोस किया कि इनके भाई हुसैन इब्ने अली मक्का से कूफा के लिए रवाना हो चुके। हजरत मुस्लिम बिन अकील को कसर में लाया गया और सर तन से जुदा करके छत से गिरा दिया गया। इसके बाद आपके सर को यजीद के पास दमिश्क भेजा गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील वफा शारी और शुजात बहादुरी के पेकर थे। आपने वफा के जज्बे का ऐसा मुजाहिरा किया जैसे हजरत अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा शारी की थी। हजरत मुस्लिम ने हकीकी इस्लाम के सफ़ीर का किरदार अदा किया और दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहादत को गले लगाया। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।